عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جملہ بہ جملہ اس کو پڑھ رہے تھے اور اس کے جوابات جو ہے وہ سمجھ رہے تھے. مرزا جی نے ایک طویل تمہید بیان کرنے کے بعد جس میں مرزا جی نے اپنے جو مرزا جی چورن بیچتے ہیں اپنے پمفلیٹوں کا اپنے ان پمفلیٹس کا بھی تعارف مرزا جی نے کرایا اور کرانے کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں اس میں اور بہت چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن ہم مختصر تمہید جو ہے نا میرا خیال ہے کافی ہے. مجھے شاہ جی پانی ڈال دیں آپ. شاہ جی نے تو ان کے اوپر پانی نہیں ڈالا لیکن ہم مرزا جی کو یہ مشورہ دیں گے کہ مرزا جی میں غیرت ہو تو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو, وہ زیادہ ان کے لیے بہتر رہے گا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے نا سوالات شروع کریں. اب علی الحسن نقوی صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا اجازت ہے علی بھائی. مرزا جی نے کہا جی اجازت ہے, یہ کوئی مولویوں والا حساب نہیں ہے جناب, پکڑ کے تو اینو میرا مرید پھڑے گا. اچھا ویسے واقعی مرزا جی جو ہے وہ ابھی تک تو اسی اس میں ہے لیکن مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں آگے یہ بات کہی ہے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے, ہمارے پاس ہی آ رہی ہے عوام سنیوں کی بھی شیعوں کی بھی. مولوی صاحب مطلب مرزا جی ویسے آپ کے اندر بھی جو ہے نا وہ مرید بنانے والا ہے تو صحیح معاملہ کہ آپ بھی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ میرے بھی مرید بن جائیں. وہ الگ بات ہے کہ جیسے آپ نے خود اپنی اسی ویڈیو کے اندر بات کی ہے کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اب ایک آئیکن بن چکے. اس کے بعد علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں اچھا علی بھائی میں بھی تھوڑا سا گزارش کر دوں, کچھ سوالات تلخ بھی ہوں, اکثر تو میرے نہیں ہیں, زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ریسیو کیے ہیں. اچھا سمجھے ذرا اس بات کو, میں جو عموماً یہ اس ویڈیو کے دوران بار بار یہ آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں, مرزا کو بغور سننے کی ضرورت ہے, بس بغور سنا جائے مرزا کو. یہ جو مرزا جی ابھی آگے کہیں گے نا کہ یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے, آپ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ پلانٹڈ ہے. مرزا جی نے بالکل ابتدا کے اندر یہ بات کہی تھی اسی کانٹیکسٹ میں محرم الحرام 1438 ہجری میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وقتاً فوقتاً جو مجھے ای میلز ملتی رہتی ہیں میرے ای میل ایڈریس پر mirza@yahoo.com پر, اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی یہ سوال آتے ہیں, تو ان تمام سوالوں کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب دی جائے اور ایک کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا جائے ویڈیو کے اندر تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایسٹ ہو جائے. یعنی ایک طرف مرزا جی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے ای میلز کے ذریعے ملتی ہیں جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, اور دوسری طرف علی الحسن نقوی صاحب جو ہے سوال کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ اکثر سوالات میرے تو نہیں ہے, زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ریسیو کیے. تو پہلے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو مرزا جی سے کیے گئے ہیں, پھر تاثر یہ ہے کہ یہ سوالات وہ ہیں جو علی الحسن نقوی سے کیے گئے ہیں. آپ کو یہ لگے گا کہ ہم اس بات کو کیوں اتنی باریکی سے دیکھ رہے ہیں. ہم اس بات کو اس لیے اس باریکی سے دیکھ رہے ہیں کہ مرزا جی آگے ہی 2 جملوں کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو پلانٹڈ نہیں ہے. یہ جو آپس میں جملوں کا تضاد ہے نا یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے, ورنہ اگر حقیقی ہوتا تو سیدھی بات ہوتی نا. بہرحال کہتے لیکن تھوڑے ٹف سوالات بھی ہوں گے. مرزا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ.
अब ये जो मिर्जा जी ने कहा था ना कि हम इनको कंपाइल करेंगे, हमने एक अंदाजा लगाया कि 100 सवालात हो सकते हैं, तो ये समझ लीजिए पहला सवाल, यह पहला सवाल शुरू होने जा रहा है। अली हसन नकवी ने कहा अच्छा इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो मैंने तवज्जो दिलाई ये सबसे पहला सवाल है। अब मिर्जा जी ने बीच में रोक के कहा ये मेरे भाइयों प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये जेनियन मिर्जा @95yahoo.com पर जो सवालात आते हैं ये वो सवाल हैं, हमने उन्हें लिखा एक तरतीब से जरूर है, ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है कि बना बना के उसको तरतीब के लिए एक लेक्चर में तब्दील किया है। जी शाह जी, वो शाह जी की तरफ मुखातिब हुए, और यही मैंने तवज्जो दिलाई है कि मिर्जा जी ये बात शुरू में भी कह चुके हैं, जबकि अली हसन नकवी कह रहा है कि ये सवालात मेरे नहीं है, मुझे रिसीव हुए। अली हसन नकवी ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सकीफा बनी साइदा का भी नाम दिया जाता है और खिलाफत का मसला भी छेड़ा है, तो उसमें अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये है, उनका तो इस पर तकरीबन उनका इजमा उम्मत ही है शिया का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वाज़े बना दिया था। माशाल्लाह सवाल करने वाले जो अली हसन नकवी साहब हैं, इनके लिए मिर्जा जी ने ये बात पहले यानी कह दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है अली हसन नकवी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, इनकी भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में। ये जो एक्सपर्टीज़ वाले अली हसन नकवी साहब हैं, ये सवाल में कह रहे हैं इस पर तकरीबन उनका इजमा उम्मत ही है शिया का। इजमा उम्मत पूरी उम्मत का इजमा होता है, शिया का नहीं होता। सवाल करने वालों को सवाल में भी अपने ये तमीज़ नहीं है, ठीक है, वो एक तालिब इल्म है, गलती कर सकता है, लेकिन जब मिर्जा जी खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने उसको तरतीब दिया, तो जब तरतीब दिया है तो ये सवाल मिर्जा जी के सामने किया गया होगा ना कि ये शिया का इसमें इजमा, तो मिर्जा जी टोकते हैं नहीं, इजमा तो पूरी उम्मत का होता है, शिया का इजमा उम्मत कौन सा है, सवाल ही गलत हो जाएगा। लेकिन बार तो कहते हैं कि इस पर तकरीबन उनका इजमा उम्मत ही है शिया का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वाज़े बना दिया था। और अहले सुन्नत में यह है कि अहले सुन्नत ये तो अक्सर कहते हैं कि किसी को भी नहीं बनाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निशानियां दे दी थी कि जिससे वाज़े हो रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही खलीफा बनेंगे। तो इस पर आपका थोड़ा मौक़िफ़ जानना चाह रहे थे बहुत से लोग कि आपकी इसमें क्या तहकीक है। मिर्जा जी जवाब देते हुए कहते हैं देखें जी मेरे भाइयों, मैंने इसके ऊपर अपनी तहकीक जो है ना 3 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करवा दी है। मिर्जा जी ने टोका नहीं, मिर्जा जी ने टोका नहीं। मिर्जा जी को टोकना चाहिए था, वो इसलिए कि मिर्जा जी शुरू के अंदर ही ये बात कह चुके हैं कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौक़िफ़ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा। मौक़िफ़ की बात पर मिर्जा जी को टोकना चाहिए कि मेरा मौक़िफ़ नहीं पूछो, जो किताब और सुन्नत है वो पूछो। और मिर्जा जी शुरू में बात कह चुके हैं कि मैं, यानी मिर्जा जी ने ये कहा है कि मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का फ़हम बयान करूंगा। और मिर्जा जी ने साथ ही कहा इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। तो मिर्जा जी से मिर्जा जी का मौक़िफ़ पूछना ये गलती है, मिर्जा जी को टोकना चाहिए था। लेकिन मसला ये है ना कि मिर्जा जी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद क्या कह रहे होते हैं, खुद मिर्जा जी को होश नहीं होता। बहरहाल कहते हैं कि जी मेरे भाइयों, मैंने इसके ऊपर अपनी तहकीक जो है ना 3 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करवा दी है। अब ये बात 3 घंटे दोबारा तो इस पर मैं नहीं बोल सकता, दोबारा तो मैं इस पर नहीं बोल सकता। अच्छा जी, जबकि मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर ये बात की है, एक मसले पे बात करते हुए ये बात की है, वरना तो मैं इस पर 10 घंटे फिल बदी बोल सकता हूं। मिर्जा जी ने अभी क्या कहा इस सवाल के ऊपर कि मैंने इस पे 3 घंटे का लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, जबकि मिर्जा जी ने एक मसले पर बात करते हुए अपनी यानी चैंपियन होने को ऐसे बताया है कि वरना तो मैं इस पर 10 घंटे फिल बदी बोल सकता हूं। तो मिर्जा जी उस पर 10 घंटे बोल सकते हो, उस पर 1 घंटे बोल लेते। अब मैं इस पर मुख्तसर सी ही इस पर जवाब दे सकता हूं। मेरा लेक्चर है मसला नंबर 55B वैसे रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस किरतास का तहकीकी जायजा। वो जो हदीस किरतास अहले तशय्युअ की तरफ से उठाई जाती है ना मुहर्रम के दिनों में कि हजरत उमर कागज कलम के दरमियान हायल हो गए थे, और वो मुस्लिम में भी है और इमाम मुस्लिम ने लिखा है, मैं अवामुन नास के लिए लिखा। और आप बताइए शेख जुबैर साहब ने और बाकी अहले उलमा ने कहा है कि हदीस किरतास बयान करना हराम है। मिर्जा जी को सुनने वाले तो वही वाले हैं ना, वो यूं आशू आशू। लेकिन आप समझे जरा इस बात को कि एक समझदार किस्म का आदमी थोड़ी देर के लिए रुके और सोचे। अली हसन नकवी ने सवाल हदीस किरतास पे किया है,
अली हसन नकवी ने तो सवाल ये किया है कि सकीफा बनी साहिदा का जो वो इख्तलाफ है कि जो अहले तशय्युअ कहते हैं कि हज़रत अली को खलीफा बनाया था और अहले सुन्नत कहते हैं अबू बकर के लिए निशानियां बयान कर दी थी, इस पर आप अपनी तहकीक बयान करें, इस पर आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो मिर्जा जी ने वो बताना है, लेकिन मिर्जा जी भी वो जल कुकड़ी भाभी है कि जिसका घर के अंदर झगड़ा किसी से भी हो बुरा नंद को बनाती है कि कुछ ना कुछ कर करा के ना बात घुमा फिरा के वहीं लेकर रहनी है, घुमा फिरा के। भाई आप सीधे जवाब दो, नहीं, वो सारी वो इख्तलाफी बातें मिर्जा जी जरूर करेंगे। मिर्जा जी ने कहा कि जी वो जो ना इमाम मुस्लिम ने भी लिखा है, अवामुन नास के लिखा, और आप बताइए कि शेख जुबैर साहब ने और बाकी अहले हदीस उलमा ने कहा है कि हदीस करतास बयान करना हराम है। अली हसन नकवी ने कहा नहीं, हराम नहीं, उन्होंने कहा है कि करनी नहीं चाहिए इस वजह से कि फितना फैलेगा। ये समझे कुछ बात नहीं। पहली बुनियादी चीज तो यह है कि किसी अहले हदीस आलिम ने यह नहीं कहा कि हदीस किरतास बयान करना हराम है, और शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किसी किताब, किसी दरस, किसी तकरीर में यह नहीं कहा कि हदीस किरतास बयान करना हराम है, इल्ला माशाअल्लाह। और आप समझे जरा इस बात, तम तराक के साथ ये आदमी झूठ बोलते हुए उलमा अहले हदीस के ऊपर, सबके ऊपर इसने बहतान लगाया कि जी ये कहते हैं कि हदीस किरतास बयान करना हराम है, तो उसने रोका अली हसन नकवी ने कि नहीं, हराम नहीं, उन्होंने कहा करनी नहीं चाहिए इस वजह से कि फितना फैलेगा। हालांकि उनका यह मकसद कतई नहीं है। ठीक है, याद रखें सहाबा किराम के बाहिमी इख्तलाफात के मसले पर जिन रिवायात को अवामुन नास बगैर उलमा के बताए समझ नहीं सकते, उसके लिए उलमा आमियों को ये मशवरा देते हैं, ये नसीहत करते हैं कि उन्हें अवामुन नास के आगे बयान मत करो कि तुम उन्हें समझा नहीं सकते, तुम उन्हें समझा नहीं सकते। बस इस हद तक की बात, ये नहीं है कि उनका बयान करना हराम है या उनको बयान ही नहीं करो कि फितना फैलेगा। अगर आप उसे समझा सकते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि फितना फैलेगा। मिर्जा जी कहते हैं कि फितना पड़ेगा, तो इमाम मुस्लिम जो है ना फितना फैला गए नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब जाहिर है फिर बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे ही नहीं करने चाहिए थे। अब जब तर्जुमे करेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे कि ये वाली हदीसें पढ़नी है, हमसे नोट्स बनवाएं, आवाम तो पढ़ेगी, तब आवाम फिर तो जवाब के लिए आपके मौलवियों के पास जाएगी। अभी देखो ये मिर्जा जी का अंदाज कि मिर्जा जी कहते हैं कि अच्छा फितना, तो इमाम मुस्लिम जो है ना फितना फैला गए। भी कोई मिर्जा जी से पूछे कि मिर्जा जी कुरान की जो आयत है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, इसको आम मजमू में वैसे ही रूटीन के साथ आप इस पे दर्स क्यों नहीं देते? या वो जो आयात सिफात हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साक का इस्बात हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यद का इस्बात हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वज्ह का इस्बात हुआ है, आप उसको आम मजमू के अंदर क्यों नहीं बयान करते, या आप उसके ऊपर अपने पूरे पूरे लेक्चर क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा देते? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी आपको पता है अवामुन नास को समझाने के लिए आपने तौहीद को भी बेसिक से बयान करना है, मुकम्मल, यानी कि उसके जो उरूज से, उसके रूफ से बयान नहीं करना, अवामुन नास की समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से हुर्मत वाले रिश्तों का मसला है, हुर्मत वाले रिश्तों का मसला आप एकदम तो नहीं किसी को समझाने बैठ जाएंगे, उसको आपने बेसिक लेकर चलना है, बेसिक एक एक करके बात समझानी है। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह ने सीधी सीधी आयतें उतारी हैं, बात इसका मतलब ये थोड़ी है, या आपने बयान कर रहे तो ये फितना है, इसका ये मतलब थोड़ी है। मतलब तो बिल्कुल बात है, आप बेसिक से चीजों को बयान करें। आपने क्या किया है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस को नकल किया उसको उलमा हमेशा से बयान करता है। आपने क्या किया है कि उलमा वाले अंदाज को छोड़ा है, आपने अपनी नई मंतकें जो आपने राफजियों से सीखी वो मंतकें लेकर आप बैठे और आपने डायरेक्ट उनको आवाम को बताना शुरू कर दिया, जिससे फितना फैला। शिया सुन्नी इख्तिलाफ हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप देखें कि जो आपने जो ये तम तराक के साथ कहा कि फिर बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे ही नहीं करने चाहिए थे, अरे यही ये आप हमारे ऊपर तंज नहीं कर रहे, यही तो हमारी दलील है कि अगर ये हमारे उलमा कहते हैं कि ये अहदीस बयान करना हराम है, तो क्या हमारे उलमा बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे करते हैं? बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे आपके राफजियों ने नहीं किए, बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे मिर्जा जी आप या आपके बने नहीं किए, मिर्जा जी बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे हमारे उलमा ने किए, और इसीलिए कहे कि आम अवाम तक भी अहदीस पहुंचे। लेकिन मखसूस तौर पे बगैर जहन साजी किए मखसूस तौर पे किसी जगह से हदीस के एक टुकड़े को बयान कर देना और उसके ऊपर अपना एक लंगड़ा लूला बिदती मौक़िफ़ बयान करना, असल में ये है ना फसाद। तो मिर्जा जी कहते हैं आप जब तर्जुमा करेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे कि ये वाली हदीसें पढ़नी है, हमसे नोट्स बनवाएं, आवाम तो पढ़ेगी, तो आवाम फिर जवाब लेने के लिए आप मौलवियों के पास जाएगी।
मिर्जा जी तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के दौरान कहते हैं आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। मिर्जा जी आप तो खुद कह रहे हैं आज के मुसलमान कमजोर है। मिर्जा जी आप तो खुद कह रहे हैं कि आज के मुसलमान के पास तो दीन ही टूटा फूटा पहुंचा है। और उसके बाद मिर्जा जी ये भी देखें, आप ही ने इस लेक्चर के शुरू में कहा है कि बतौर खास अवामुन्नास के लिए शाहजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे, वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व ज़ईफ क्या है। ये है अवाम। आपने तो अवाम की ये नुमाइंदगी भी कर रखी है। तो जब आपने अवाम की ये नुमाइंदगी कर रखी है तो आप खुद बताएं कि जो आपने सीधा सीधा कह दिया आवाम तो पड़ेगी, तो आवाम फिर जवाब के लिए आपके मौलवियों के पास जाएगी। मौलवी साहब अब मसला ये है कि मिर्जा जी आपने इसी वीडियो में तो अपने कहा है कि मौलवियों पर से अवाम का एतबार उठ गया है, उलमा पे से अवाम का एतबार उठ गया है। आपने लोगों को पहले उलमा से मुतनफिर किया, उलमा से बाबा बाबा करके आपने लोगों को पहले उलमा से मुतनफिर किया, फिर लोगों को पर यानी कि अपने गुफ्तगू का ये शहर डालने की कोशिश की कि लोग सिर्फ आपको सुने। अब जाहिर है कि लोग सिर्फ आपको सुन रहे हैं और आपने कहा जी इस्लाम 360 में देख लो, वो इस्लाम 360 में देख रहे हैं, उनको जैसा लिखा हुआ नजर आ रहा है वो उसी पे मिलवान यकीन करके जो आपने कहते हैं उन्होंने लगा कि हाँ हमारी तहकीक हो गई, यही है असल बात। बस आपने सरसरी कोई हदीस का एक टुकड़ा बयान करा, उसका तारीखी पस मंजर जाने बगैर उसने हदीस की किताब खोली, आपके मुकल्लिद ने उसी के ऊपर ईमान लिया है, वो मौलवी के पास कहाँ है। मिर्जा जी आपके लोग उलमा से अगर मिल लें तो आपकी मैयत ही ना हो जाए। उसके बाद आप आगे कहते हैं वैसे तो ये इनकम्प्लीट है, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं बातें करना ही नहीं चाहिए। है मिर्जा जी जवाब नहीं दे सकते? अगर जवाब नहीं दे सकते तो आपको किस बात का डर लगता है? आप ही बैठ के ये सारी बातें उलमा से कर लो ना, अपनी मर्जी का आप आलिम जो आपकी बराबरी करता है। आप तो कहते हैं ना मेरे बराबर का हो, मेरी जैसी उसके बाद डिग्री हो, मेरी जैसी उसमें काबिलियत हो, तो जो आपकी जैसी डिग्री वाला है, आपकी जैसी काबिलियत वाला है, आप उसी के सामने बैठ जाओ। वो जवाब अगर दे नहीं सकते तो आपको घबराहट किस बात की होती है? आप क्यों उलमा के सामने? आज जब आप बैठकर ये बात कर रहे हो कि जवाब नहीं दे सकते तो आप बैठ जाओ ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दो। मगर क्या ऐसी बात है आप नहीं बैठते और पब्लिक को आप ये कहते हैं वो जवाब नहीं दे सकते। 12 इनकी कंपेटेंसी नहीं है, यानी कि इनमें सलाहियत नहीं है। कुएं के मेंढक हैं, अपने फिरके की बातें पढ़ेंगे, फिर लोग इंशाल्लाह हमारे पास ही आएंगे। हमारे पास ही आ रही है अवाम अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों की भी शियों की भी। हाँ हम भी आएंगे, हमें तो बुलाते नहीं आप, हमें बुलाओ, आप हमें भी दावत दो, हम भी आते हैं आपके पास। अब हमारी है ना आपके पास भाई, आप समझे जरा इस बात को। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से छोड़ो ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें। आप जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं उनसे आप मिसाल लेना। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी को दावत देने के एतबार से, किसी से मुनाज़रा करने के एतबार से कभी आप पीछे हटे? निकाल के दो आप तारीख में से कोई लूली लंगड़ी भी इस हवाले से रिवायत हो कि आप किसी को दावत देने के हवाले से, किसी को मुनाज़रा करने के हवाले से किसी से पीछे हटे हो। उन्होंने तो की ना बात। मिर्जा जी आप क्यों पीछे हटते हैं? आपकी दाल में तो सब कुछ काला। आगे कहते हैं तो मेरे भाई मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्जा जी के अल्फाज जो है, मेरा ये मौकफ है कि ना तो वसी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और ना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं व अलैहिमुस्सलाम। ट्विस्ट। अब अली उल हसन नकवी कहते हैं फिर कौन है अली भाई? अब मिर्जा जी जवाब में कहते हैं बल्कि वसी रसूल जो है कुरान पाक है, ये मैंने साबित किया है। एज फॉर एज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत इज कंसर्न्ड, कयामत तक के लिए, उस पर मैंने हदीस भी बयान की है। बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग 4459 और ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम। अब मिर्जा जी अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं ये मैं जानबूझकर बार बार बोलूंगा अलैहिस्सलाम ताकि अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा इनके दिल से निकल जाए। मिर्जा जी के अल्फाज, हमने एक लफ्ज भी मिर्जा जी की तरफ मंसूब नहीं किया है। मिर्जा जी ने अगर ये जुमला ना कहा हो तो जो चोर काल वो हमारा, और इससे मिर्जा जी के जो मुकल्लिदीन या हमारे वो नासेह भाई जो हमें नसीहत कर रहे होते हैं मिर्जा जी के हवाले से अपना लबो लहजा हल्का रखने के लिए, मिर्जा जी की जातियात पर बात न करने के हवाले से, मिर्जा जी के ऊपर यानी कि जुमलों की तलखी के हवाले से जो भाई हमें मशवरा दे रहे होते हैं, ये जरा मिर्जा जी का तरीका आप देख लें। तो मिर्जा जी कह रहे हैं मैं जानबूझकर बार बार अलैहिस्सलाम बोलूंगा ताकि ये अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा, मसला ये नहीं है कीड़ा, मसला है अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा।
जुमले के अंदर मिर्जा का जंगलीपन देखें, अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा। इस आदमी के जो मुंह में आता है ये बकवास कर देता है, लेकिन हराम है सुनने वालों के ऊपर, उन अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन के ऊपर कि उनके कान पे जू भी रेंगे। ये देखो जुमले का अंदाज देखो, ये अलैहिमुस्सलाम वाला कीड़ा, क्या जाहिल आदमी है ये, आप अंदाजा करो जरा इस बात पर, इनके दिल से निकल जाए। अब मिर्जा जी शुक्र है आप हमारे दिल से कीड़ा निकलवा रहे हो, आप हमारी वीडियोस तो देखो, आपके सारे दिमाग के कीड़े मर जाएंगे, बेफिक्र रहो। कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, ये तो वो आगे बता रहे हैं, तो आगे हम इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे अल्लाह की दी हुई तौफीक से। हम तशहुद में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम हो, सारे नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं जिसको नेक समझता हूं अलैहिस्सलाम कहूंगा, क्योंकि मैं तो नमाज में कहता हूं, नमाज के बाहर क्यों ना कहूं। हाँ मिर्जा जी आपके बाप का दीन है, जैसे चाय कर लो, कोई मसला थोड़ी नहीं। अच्छा ऐसे मिर्जा जी हमारा, मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से सवाल है कि अगर इसी तरह आपने मंतके निकाल लिए ना कि मैं तशहुद के अंदर जब बोल रहा हूं तो मैं तशहुद के बाहर क्यों ना कहूं, तो ऐसे ही हमारा मिर्जा जी से सवाल है कि मिर्जा जी जो नमाज के आखिर में मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ता हूं, ये अगर मैं तकबीर कहने के बाद सना पढ़ने से पहले पढ़ लूं तो क्या मसला? अगर मैं पढ़ूं तो कोई मसला नहीं है। मिर्जा जी इसकी आपसे दलील चाहिए, और अगर मिसाल के तौर पर मैं पढ़ लेता हूं और कोई मसला है तो मिर्जा जी मुझे इसकी आपसे दलील चाहिए। हमारा 7वां सवाल मिर्जा जी अब आपसे हो गया कि अगर सना पढ़ने से पहले, सना पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले या सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, कुरान की कोई सूरत पढ़ने से पहले या उसके बाद, मैं दुरूद जो नमाज के आखिर में पढ़ रहा हूं, तशहुद के बाद पढ़ रहा हूं, जो तशहुद आपने इशारा दिया जो उसके बाद पढ़ रहा हूं, अगर मैं वो पहले भी पढ़ लूं, मैं यहां पढ़ने से इनकार नहीं कर रहा, मैं वो वहां पहले भी पढ़ लूं, तो इसमें कोई हर्ज है? आप कहते हैं कोई हर्ज नहीं, तो उसकी दलील चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हर्ज है, उसकी दलील चाहिए। ऐसे नहीं जब आपने कह दिया नमाज के बाहर क्यों ना कहूं, मिर्जा जी आपका जो दिल करे आप करो, क्योंकि सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे अंदर से हया मर जाए, फिर तेरा जो दिल करे वो करो, कोई मसला नहीं। लेकिन हम तो आपसे सवाल करेंगे, हमने अलैहिस्सलाम के मसले में आपसे कहा, अब उस पर हमारा तो आपसे सवाल है कि मिर्जा जी अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हमने उसके दलाइल दिए, अगर मैं कहूं अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्जा जी ये गलत है, अगर है तो आप इसकी दलील दें, और अगर सही है तो आप छोड़ो ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम, आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहना शुरू हो जाओ, आपको कौन रोक रहा है? उसके बाद मिर्जा जी कहते हैं फिर जब हम कब्र रसूल पर जाकर अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलामु अलैका या उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, या अबू बकर या उमर नहीं कहते, फिर कब्रिस्तान में अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारिल मुमिनीन या अलैहिमुस्सलाम में कहूं, मैं शुरू ही ये कीड़ा इस लिहाज से निकाल दूं। और ये सहाबा की सुन्नत है कि वो कब्र रसूल पे जाकर ये चीजें अर्ज किया करते थे। पहली बार मिर्जा जी आपने जाकर जो कब्र रसूल पे अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर या अस्सलामु अलैका या उमर कहना है, इसके आपने दलील देनी है, सही रिवायत आपने पढ़ के सुनानी है मिर्जा जी। ऐसे थोड़ी कि हम जाकर कह रहे हैं, हम जाकर कहना दलील हो गया आपका। आपने कभी हमको दलील बनाया? आप तो इसमें अल्लाह और उसके रसूल का फहम, सल्फ का फहम बताने बैठे थे ना, ये आपने कौन सी बात की है? और जो आपने अगर कर दी है तो हमारा आपसे 8वां सवाल है, अब आप इसकी भी दलील देंगे। फिर उसके बाद आगे कहते हैं हम कब्रिस्तान में अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं वो हदीस है, उसके लिए हदीस है, इसलिए हम कहते हैं। जैसे कि हम नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो अल्लाह के नबी, अल्लाह के ए नबी आप पर। अभी हमें इसीलिए सिखाया, इसी तरह सिखाया गया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नहीं है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन हम अलैका मुखातिब का सीगा, हाजिर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही हमें सिखाया गया। मिर्जा जी हम आपकी तरह नहीं है, आप तो भानमती हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लाकर आप अपना कुंभा जोड़ने बैठी हैं, ये ऐसे मसले का हल नहीं होना। और हाँ, मैं शुरू में ही ये कीड़ा सिलाज से निकाल दूं, मैं हमने तो सुना था आप इंजीनियर हैं, आप सर्जन कब से हो गए, कीड़े निकाल रहे हैं लोगों के, करने का काम कर लो। कहते हैं तो अब्दुल्लाह बिन अबी औफर रज़ियल्लाहु अन्हु 86 हिजरी में फौत हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये 75 ईयर जिंदा रहे हैं। इनसे सैयदना तला ने पूछा कि बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी किसी को बनाया था? उन्होंने कैटेगोरिकल
ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ حجۃ الوداع والا خطبہ، اچھا دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا نے کیٹیگوریکل ڈینائی کیا اور کہا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. لو جی، مرزا جی نے کہا نا کہ میرا موقف یہ ہے کہ نہ تو وصی رسول ابو بکر ہیں نہ علی ہیں علیہ السلام. ٹھیک، مرزا جی نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ذرا دیکھیے گا، حدیث نمبر 4459. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی مرزا جی نے جس حدیث کی طرف پڑھنے کی توجہ دلائی ہے، سنیے گا ذرا بات کو. یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سال تو عبداللہ بن ابی اوفا اوصن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. بھائی میرے پیارے کچھ سمجھے ہیں بات کوئی نہیں. مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا. روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ اوصن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. فقال اللہ، کہا نہیں. فقلت کیف کتب علی الناس الوصیۃ او امر بہا، میں کہہ رہا ہوں مرزا کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں، آپ اندازہ کریں. یہ کیسا جال ساز آدمی ہے. آپ دیکھیں اس نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی مرزا جی نے یہ بات کہہ رکھی ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء 2 نمبری کرتے ہیں. کیا 2 نمبری کرتے ہیں؟ کہ آدھی حدیث بیان کرنا 2 نمبری ہے. آپ اندازہ کریں اس آدمی سے بڑا 2 نمبر کوئی ہو سکتا ہے جو خود اپنے منہ سے کہے کہ حدیث کو آدھا بیان کرنا 2 نمبر ہے، اور وہ آدمی یہاں پر یہی حرکت کرے کہ نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر چلنے کا حکم دیا. سیدنا طلحہ نے جب یہ پوچھا، اس کے بعد جب انہوں نے کہہ دیا نہیں، تو سیدنا طلحہ نے جو سوال کیا وہ تو بتاؤ. سیدنا طلحہ کہتے ہیں کیف کتب علی الناس الوصیۃ او امر بہا، تو پھر لوگ کیوں وصیت کرتے ہیں اور کیوں وصیت کرنے کی بات کرتے ہیں؟ قال اوصى بکتاب اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو اللہ کی کتاب سے بتایا. یہ تھی بات. سمجھے ہیں بات کہیں؟ یا یہ بات نہیں ہو رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی کیا، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا نے یہ کہا ہو کہ نہیں. یا یہ بات ہو رہی ہے کہ سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے؟ وصیت جو کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے، وصیت کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر لوگ کیسے وصیت کرتے ہیں یا وصیت کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اللہ کی کتاب بتائی ہے نا، وصیت کا حکم سورہ نساء میں. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الوصیہ امام نووی نے باب قائم کیا ہے، باب ترک الوصیۃ لمن لیس لہ شیء یوصی فیہ. اس کے تحت طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر مسلمانوں پر وصیت کیوں فرض ہے؟ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، سنو ذرا بات کو. انہوں نے پوچھا سال تو عبداللہ بن ابی اوفا حل اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی؟ فقال اللہ نہیں. قلت فلما كتب على المسلمین الوصیۃ او فلما امروا بالوصیۃ، تو پھر مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں فرض ہے اور کیوں مسلمان وصیت کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ قال اوصى بکتاب اللہ عز وجل، وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے وصیت کرتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب نے وصیت کا کہا. کیا بات تھی اور مرزا نے کیا بنا دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل میں شک پیدا کرنے کے لیے مرزا نے ایک نئی ٹرمینالوجی نکالی کہ جی میرا تو موقف یہ ہے، نہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے نہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ قرآن. چلو جہاں نہیں چھوٹی. سمجھے نا بات کو یا نہیں؟ جبکہ بات اس طرح تھی نہیں، بات اس طریقے سے تھی نہیں. آپ دیکھیں، اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والا خطبہ، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. حیران کن بات ہے
3950 حدیث نمبر ہے, کتاب الحج والے چیپٹر میں پورا خطبہ ہے. جابر بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا. باقر علیہ السلام نے امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں, تو ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کا بچہ آیا ہے تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے ان کے جو نا بٹن کھولتے ہیں آگے گریبان کے, امام باقر کے کھولتے ہیں. وہاں پر آئے گا محمد بن علی بن حسین, امام باقر کا نام تھا. محمد بن علی بن حسین زین العابدین کا نام تھا. تو وہ سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے, تو میرے نبی کا بیٹا ہے, تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائے گا میں بتاؤں گا. تو آج کی سب سے لمبی حدیث 3950 نمبر صحیح مسلم کے اندر. اب مجھے یاد 3950 ہی ہے اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث. 2950 ہے یا 3950 ہے, بہرحال اب وہ دیکھ لیجئے گا چونکہ اب فی الودیع گفتگو ہے, اس طریقے سے نمبر یاد نہیں رہتے. بہرحال مشکات میں حج والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی. تو اس حدیث میں جو خطبہ آیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ لفظ حجۃ الوداع, یہ ودا نہیں ہے, ودا فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. سنو ذرا بات کو. اچھا دیجئے دیکھیں, پہلی بنیادی چیز یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. مرزا جی نے جس حدیث کی طرف اشارہ دلایا کتاب الحج کے اندر باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس باب کی طرف اشارہ دلایا ہم نے مشکات کی بجائے ڈائریکٹ صحیح مسلم میں حدیث کھولی. حدیث نمبر 2846. جعفر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت جابر نے سب لوگوں کا حال دریافت کیا. جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں. تو حضرت جابر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلے میری قمیص کا اوپر کا بٹن کھلا, پھر نیچے کا بٹن کھلا, پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے پر دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی. میں ان دونوں نوجوان لڑکا تھا. پھر فرمایا اے بھتیجے مرحبا, جو چاہو دریافت کرو. میں نے حضرت جابر سے کچھ سوالات کیے. حضرت جابر اس وقت نابینا ہو چکے تھے. اب میری بات توجہ سے سنیے گا, مرزا نے یہاں پر کیا کیا ہے, وہی ذاکرین والی لفاظی, رنگ آمیزی. کیا تھا مرزا جی نے جو الفاظ پڑھے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سنو ذرا بات کو. زین العابدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہیں. زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہیں. سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے ہیں. حسین نواسے ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہیں. لیکن روایت میں یہ الفاظ تھے نہیں کہ تو میرے نبی کا بیٹا ہے. روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ آدمی اپنی رافضیت کے اظہار کے بغیر رہتا نہیں ہے. یہ آدمی حدیث کے ترجموں میں ڈنڈیاں مارتا ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, اہل بیت کی محبت اپنی جگہ, ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, مگر حدیث میں مانوی تحریف کر کے خود کو یہ کہنا میں حق بیان کر رہا ہوں, سمجھنا چاہیے کہ آدمی کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اور اس کے بعد مرزا جی نے کیا کہنا ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے, سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے. یہ کھینچ تان کر حسن درجے تک روایت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر, کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. آپ بات کو سمجھیے گا نا ذرا. مرزا جی سے کوئی ایسی پوچھے, علی الحسن نقوی نے مستدرک حاکم کی, یعنی یہ جو کتاب اللہ ہے وہ سنت النبی ہے, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے آ رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. علی الحسن نقوی نے سوال میں اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ کیسا یہ آدمی چونا لگانے کی کوشش کرتا ہے, آپ اندازہ کریں. پہلے سے رافضیوں کو خوش کیا, اب یہ منکرین حدیث کو خوش کر رہا ہے. سنو ذرا بات کو. کہتا ہے کہ وہ سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے, یہ کھینچ تان کر حسن درجے تک کی روایت ہے. مستدرک حاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے.
मिर्जा जी ने जिस रिवायत की तरफ इशारा किया, सुनना जरा बात को, इन्निका तरक्तु फीकुम मा इन तसमतुम बिही फलन तजिल्लु अबदन किताबुल्लाह व सुन्नतुन नबिय्यही। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं वो चीजें कि जिनको मजबूती थाम लो, हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब। सुनो जरा बात को, मिर्जा जी कौम शुएब वाली मिर्जा जी की मिसाल है। लेने के बाद कुछ और है, देने के बाद कुछ और है। अपने मतलब पे मिर्जा जी जब किसी रिवायत की तस्हीह के ऊपर आते हैं तब मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह ये जो हदीस बयान की है ना कि जिसको इल्म की कोई बात आती थी और उसने लोगों से छुपा लिया, उसको कयामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। इसके लिए मिर्जा जी ने पता है क्या कहा है? इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा है और इमाम ज़ाहबी ने भी मवाफिकत की है। इमाम हाकिम ने इसको सही कहा है, इमाम ज़ाहबी ने मवाफिकत की है। मुस्तदरक हाकिम मेरे हाथ में है। मिर्जा जी ने जिस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई वो हदीस मैंने खोल रखी है। इमाम हाकिम ने जिक्र ही क्या किया है कि इमाम हाकिम इसको सही कहना चाहते हैं, और उसके बाद आगे देखें कि इमाम ज़ाहबी ने इसकी मवाफिकत करते हुए कहा है इहतज्जुल बुखारी बे इक्रमा व इहतज्जु मुस्लिम बे अबी उवैस अब्दुल्लाह वलहु अस्लु फी सही। इसमें मौजूद रावी इक्रमा से इमाम बुखारी ने से बुखारी में दलील ली है, और इसमें मौजूद रावी अबू उवैस अब्दुल्ला से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में एहतजाज किया है। वलहु अस्लु फी सही, और इसकी असल सही है, इसकी असल सही है। यानी इमाम ज़ाहबी मवाफिकत कर रहे हैं। फिर भी अगर मिर्जा जी को कोई कीड़ा रह जाए मिर्जा जी के मखसूस अंदाज में, तो फिर उसके बाद की रिवायत इमाम हाकिम ने यह कह के नकल किया है वक़त वजदतु लहू शाहिदम मिन हदीस अबी हुरैरा, और मैंने अबू हुरैरा से रिवायत इस हदीस का एक शाहिद भी पाया है। फिर इमाम हाकिम ने इस रिवायत को नकल किया, इन्नी तरक्तु फीकुम शैयैन लन तज़िल्लु बादहुमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, हरगिज तुम उसके बाद गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। ठीक है, अब सुनो जरा बात को। इसकी इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वह हुवा शाहिदुल हदीसिल मुतक़द्दिम, और जो पहले हदीस गुजर चुकी है यह हदीस उस हदीस की गवाही देती। अब नजर नहीं आया मिर्जा जी को हाकिम की तस्हीह करना और ज़ाहबी की मवाफिकत करना। और सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में अत-तमहीद लिमा फिल मुअत्ता मिनल माने वल असानीद इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की इसकी जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 325। यही हदीस नकल करने के बाद इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह हाजा ऐज़न महफूज़ मारूफ मशहूर अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा अहलल इल्म शोहरतन युकातु युस्तगनी बिहा अनिल इस्नाद। मन कुंता मौला अली रिवायत पर मिर्जा जी से जिस दिन हम जवाब देंगे उस दिन मिर्जा जी से हम पूछेंगे इस बात को। मिर्जा जी कहते हैं, सुनो जरा, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वहाजा ऐज़न, और ये जो हदीस है महफूज, ये महफूज है, मारूफ है, मशहूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले इल्म के नजदीक इस कदर शोहरत रखती है कि उलमा व मुहद्दिसीन इसकी सनदों से मुस्तगनी हो चुके हैं, कोई परवाह नहीं रही इसकी सनदों की। ये इतनी मशहूर और मारूफ हदीस है, मगर वो मिर्जा जी ही क्या जो इतना चैन से बैठ जाए। आखिर कीड़ों का जो मसला है उसके बाद देखें जरा, गौर तलब नुक्ता है। मिर्जा जी कहते हैं अपनी इसी वीडियो में एक जगह पर कि दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर, दौरा हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला अलैह। और दूसरी जगह मिर्जा जी कहते हैं अलबानी से बड़ा कौन है, अलबानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अलबानी को नाम दिया दौरा हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासिरुद्दीन अलबानी। भाई मेरे ये नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है इस्लाम में सुन्नत का मकाम। इसके सफ़ा नंबर 31 पे नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को दर्ज किया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें, और नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको बतौर दलील दर्ज किया है। सही थी तभी तो दर्ज किया है, तभी तो उसको बतौर दलील किया। और फिर मिर्जा जी के स्टाइल में इनसे बड़ा कौन है, अलबानी से बड़ा कौन है, और मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी। इसके बाद तो मिर्जा जी का नशा ऐसा टूटना है कि बात छोड़ो। मिर्जा जी
तुम्हारे अपने कलम से हम तुम्हें दिखाते हैं, ये तुम्हारा अपना लिखा हुआ वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। मिर्जा जी ये खोलते के साथ ही ये आपका टाइटल खुला, ये नीचे आपने क्या हदीस दर्ज कर रखी है मिर्जा जी, ये सुनो जरा बात को। ये नीचे ये वाज़ेह तौर पे आपने लिखा है, और क्या कह के लिखा है जरा सुनो। नोट नोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी कुरान को बनाया था। नंबर 5 तर्जुमा सही हदीस, तर्जुमा सही हदीस, दोबारा दोहरा रहा हूं, तर्जुमा सही हदीस। बेशक मैं अपने बाद तुम में 2 ऐसी अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं कि अगर उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही अहादीस से महफूज है। अरे मिर्जा जी तुमने खुद ने तो इसको सही कह रखा है, अगर ये तुमने खुद ने लिखा है तो, अगर ये तुमने खुद ने लिखा है तो तुमने ही तो इस हदीस को सही कह रखा है। और मिर्जा जी तुम ही ये बात कह रहे हो, ये खींच तान कर हसन दर्जे तक की रिवायत है, ये यहां लिखते हैं ना खींच तान कर, लेकिन नहीं मिर्जा जी भी वही हैं, दरो गोरा हसन बाशत। और उसके बाद देखें मिर्जा जी कहते हैं कि मेरे नजदीक तो किताबुल्लाह भी काफी है, मेरे नजदीक तो क्योंकि सुन्नत उसके अंदर दाखिल है ना। ये परवेज भी बोलता था, ये बात तो परवेज भी बोलता था। ऐसा नहीं कि मेरी इस बात को सुन के कोई ये कहे कि ये तो उलमा भी कहते हैं, नहीं, दोनों के कहने में फर्क है। उलमा यानी कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतुन नबी, यही इस हदीस की तस्हीह के बाद ये बात कहते हैं किताबुल्लाह वो सुन्नत की हिफाजत के लिए खुद ब खुद दलील है। लेकिन परवेज दूसरे मायनों में कहता है, वो कहता है ये जाली रिवायत है और हमें किताबुल्लाह काफी है। किताबुल्लाह से जिस सुन्नत का इस्बात होगा हम उसे लेंगे, किताबुल्लाह से जिस सुन्नत का इस्बात होगा हम उसे लेंगे। ये वो बात है कि आपने परवेजियत की एक सीढ़ी चढ़ ली है। उसके बाद आगे कहते हैं मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस में किताबुल्लाह का जिक्र मौजूद है। वसी रसूल जो है वो किताबुल्लाह है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा की रिवायत के तहत। बहरहाल अच्छा अब देखें, ये तो बात हो गया कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा की रिवायत में ऐसी कोई बात जिक्र नहीं है। मिर्जा जी ने यानी कि सीना जोरी उसके अंदर ये मायने घुसड़ने की कोशिश की है। आगे कहते हैं बहरहाल जो पॉलिटिकली वसी रसूल खलीफतुर रसूल, बहरहाल जो पॉलिटिकली वसी रसूल खलीफतुर रसूल, इसलिए देखें हमें अहले सुन्नत भी खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वसी रसूल नहीं कहते। मेरे भाइयों मैं आपको आज एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, इसे जरूर ध्यान में रखा करें। जब मिर्जा कह रहा हूं ना हम अहले सुन्नत, तो समझ जाया करें मिर्जा जी के पीछे जो लोग हैं, जो मिर्जा जी को फंड कर रहे हैं, जो मिर्जा जी को डिक्टेशन दे रहे हैं, जो मिर्जा जी के जरिए प्लांटेड ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, वो मिर्जा जी को अहले सुन्नत बना के मिर्जा जी की ज़बानी अपने लिए ये दलील लेना चाह रहे हैं कि जो हम बोला करते थे वो अहले सुन्नत भी बोलते हैं, जो हम बोला करते थे वो अहले सुन्नत भी बोलते हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनो, मेरी बात तवज्जो से सुनो। जब मिर्जा कहता है ना हम अहले सुन्नत, तो धोखे में नहीं आना चाहिए। मिर्जा जो बोल रहा होता है वो खालिसतन राज़ियत होती है, वो अहले सुन्नत का मनहज नहीं होता, ये ज़हन में रखा कर, ठीक है। इसलिए देखिए हम अहले सुन्नत भी खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर वो कहते हैं, वसी रसूल नहीं कहते। नहीं मिर्जा जी तुम नहीं कहते, हम तो कहते हैं। मिर्जा जी तुम नहीं कहते, हम तो, हमारे पास तो दलाइल है ना, तो हम तो कहते हैं। अली कहते थे, मौला अली कहते थे मिर्जा जी हमारे पास तो उसके दलाइल है ना, आप नहीं कहते, वो आपके अंदर की राज़ियत है। और ये जो है ना पॉलिटिकली सियासी, इसमें बड़ी अय्यारी है, इसमें बड़ी पॉलिटिकली अबू बकर खलीफतुर रसूल और स्पिरिचुअली ये राफ़ियत की पुरानी इस्तिलाह है कि सियासी तौर पे तो अबू बकर खलीफा बन गए, लेकिन रूहानी तौर पर जो नायब थे वो अली ही थे, वो अली ही थे। तो मिर्जा ने वही यहां पर राफ़ियत का इजहार तकयतन किया है कि पॉलिटिकली अबू बकर, हम तो नहीं कहते वसी रसूल अबू बकर को, लेकिन मिर्जा जी आप नहीं कहते तो क्या हुआ, अहले सुन्नत कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जी ठीक है, सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना वसी किसी को बना के जाते पॉलिटिकली, किसको बनाते? सुनो भाई तवज्जो से, ठीक है। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है अबू बकर को बनाते।
पूछा उसके बाद कहा कि उमर को, पूछा उसके बाद तो कहा कि अबू उबैदा बिन जर्राह को। अम्मा आयशा खुद कह रही हैं, वरना वो कहती मेरे बाप को बनाकर गए, मुझसे सवाल क्यों करते हो? हमारे भाई की तरफ से हमें इजाजत नहीं है, क्या है कि हम जबान को जिप लगाते हैं अपनी, यकीन करें, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम। मिर्जा जी ने जिस रिवायत की तरफ इशारा किया है, ये मैंने वो रिवायत इसमें निकाल रखी है अल्लाह की दी हुई तौफीक से, किताब फदाइलुस सहाबा, हदीस नंबर 6056 है। सुनो जरा बात को, बहुत गौर से सुनो बात को। मिर्जा जी कहते हैं कि उनसे अम्मा आयशा से पूछा गया कि बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना वसी किसी को बना के जाते हैं पॉलिटिकली, किसको बनाते? सुनो जरा बात को, ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, अरबी पढ़ूंगा, अरबी पढ़ूंगा, तर्जुमा बताऊंगा, सुनो जरा बात को। इब्न अबी मुलैका समेतु आयशा वसुइलत मन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तखलिफन लविस्तखलफहु कालत अबू बकर, कालत अबू बकर। यार अल्लाह की कसम, इतना धोखेबाज है ये मिर्जा, ऐसी धोखेबाजियां करता है, ऐसा यानी कि डंडियां मारता है रिवायत के तर्जुमे में जिसको कहते नहीं। देखो सवाल करने वाला कह रहा वसुइलत, पूछी गई कौन? आयशा रज़ी अल्लाह तआला। मन काना, कौन था? रसूलुल्लाह, मन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तखलिफन, कौन था जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद खलीफा बना रहे थे? वसी नहीं, वसी का लफ्ज नहीं है, डायरेक्ट खलीफा का लफ्ज है मुस्तखलिफन। इसकी अय्यारी देखो इस आदमी की पहले, उसके बाद देखो लविस्तखलफहु, ताकि उसे खलीफा बनाया जाए, ताकि उसे खलीफा बनाया जाए। पॉलिटिकली किस लफ्ज का तर्जुमा है मिर्जा जी? क्या अय्यार आदमी है आप, ये देखें। कोई कहे ये वो मिर्जा जी ने अपना मफहूम बताया, क्यों बताया? मिर्जा जी तो कह चुके हैं ये बात, मैं अपना मौकफ या मफहूम तो बताऊंगा ही नहीं, मैं अल्लाह का फहम बताऊंगा, रसूल का फहम बताऊंगा, सल्फ का फहम बताऊंगा। मिर्जा तो कह रहा है मैंने 72 सहीहुल इसनाद अहादीस के अंदर अहादीस लिखी है, अपना तो कोई फहम बयान ही नहीं किया, ये हमने पढ़ा ना कई मरतबा। तो फिर ये क्या अय्यारी है कि आप तर्जुमा करते हुए उसमें अपने अल्फाज डालते हो? उन्होंने सवाल किया कि मन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तखलिफन लविस्तखलफहु, कौन था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा बना के गए कि उसके बाद उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खलीफा बनाया जाता? कालत अबू बकर। यार मिर्जा जी कहते हैं कि पूछा गया कि बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना वसी किसी को बना के जाते पॉलिटिकली किसको बनाते? उन्होंने कहा मेरा ख्याल है अबू बकर को बनाते, मेरा ख्याल है। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा नवा सवाल, मिर्जा जी को पकड़ो, मिर्जा जी को कहो मिर्जा जी माइक्रोस्कोप लगाओ, इस हदीस में से हमें वो अरबी लफ्ज निकाल के दिखाओ जिसके मायने आपने ये किए हैं मेरा ख्याल है कि, ये लफ्ज निकालो। इसी से तो आपने ये इमारत खड़ी की है ना, जबकि रिवायत में तो ये अल्फाज है, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा हालत अबू बकर, कहा क्या अबू बकर को? उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा ख्याल है अबू बकर को, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अबू बकर को। फकील लहा सुम्मा मन बाद अबी बकरिन, पूछा गया अबू बकर के बाद किसको? कालत उमर, उन्होंने कहा उमर को। यही वजह है कि आप देखें आगे मिर्जा जी कहते हैं पूछा उसके बाद कहा कि उमर को, मेरा ख्याल है डाला मिर्जा जी ने। क्यों? उमर पे, आयशा ने उमर पे मेरा ख्याल है नहीं बोला, वहां यकीन था। हाँ सुनो जरा बात को। फिर वो पूछा उसके बाद तो कहा कि अबू उबैदा बिन जर्राह को, यहां भी आयशा ये नहीं कह रही मेरा ख्याल। और यही है रिवायत में भी कि पूछा गया सुम्मा कीला रहा मन बादा उमरा कालत अबू उबैदा बिन जर्राह सुम्मन ताहा तो इला हादा, उसके बाद आयशा खामोश हो गई। कुछ बात आप समझ रहे हैं या नहीं? रिवायत में अल्फाज नहीं है मेरे ख्याल में, तो यही तो वजह है मिर्जा जी आके कहती हैं, अम्मा आयशा खुद कह रही है, वरना वो कहती है मेरे बाप को बनाकर गए, यही तो कहा उन्होंने, नाम अबू बकर लिया, मेरे बाप ने कहा। अच्छा कहते हैं ठीक है, इस तरीके से सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4460 नंबर। अम्मा आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरी गोद में हुई है, आपने किसी के लिए खिलाफत की कोई वसीयत नहीं की है। मेरे भाई मिर्जा जी की
एक और अय्यारी देख लो, एक और मक्कारी देख लो, तर्जुमे में डंडी देख लो, तहरीफ देख लो। ये मेरे हाथ में सही बुखारी। मिर्जा जी ने 4460 नंबर जो हदीस देखने के लिए कहा है, हमने 4460 निकाली हदीस। आप देखें, मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, ताकि कोई इबहाम ना रहे। अनिल अस्वद काला जोकेरा इंदा आयशा था, अस्वद से रिवायत है, वो कहते हैं कि जिक्र किया गया आयशा के पास, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा इला अलीयन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के लिए वसीयत की थी? भाई मेरे सुनो जरा बात को। फकालत मन काला हूं, कौन कहता है? हज़रत आयशा ने कहा कौन कहता है? लगत रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नी लमुस्निदतहु इला सदरी, मैंने खुद देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत में कि आपका सर मेरे सीने पे था। फदा बितस्ती, तो आपने तश्त मंगवाया, जो हमारी उर्दू में जिसको हम तश्त कहते हैं, आपने तश्त मंगवाया। फन हनसा, आप उसकी तरफ झुके, व माता, और आपका इंतकाल हो गया। फमा शअरतु फकैफ औसा इला अलीयन, उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ, उस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं मालूम हुई। फकैफ औसा इला अलीयन, तो कैसे वो अली के लिए वसीयत करेंगे? क्या धोखेबाज आदमी है ये। आप अंदाजा करें कि कहता है कि इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4460 सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरी गोद में हुई है, आपने किसी के लिए खिलाफत की कोई वसीयत नहीं की, किसी के लिए नहीं। डायरेक्ट जिक्र है अली का, सही मुस्लिम की रिवायत में डायरेक्ट जिक्र है अबू बकर का। भाई मेरे, आप अंदाजा तो करो कि ये अहले सुन्नत के दलाइल को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, और मक्कारी कर रहा है कि मैं अहले सुन्नत के दलाइल दे रहा हूं, मैं अहले सुन्नत का मुकदमा बयान कर रहा हूं। अब भाई अबू बकर का तो नाम लेके आपने कहा है कि अगर आप किसी को खलीफा बनाते हैं अबू बकर बनाते हैं, और अली के लिए जब कहा गया कि अली को वसी मुकर्रर किया गया, तो आयशा कहती है कौन कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरी गोद के अंदर तो आपने सर रखा हुआ था जब आपका इंतकाल हुआ है, आपने तो अली के लिए कोई वसीयत नहीं की। मिर्जा जी कैसे पी गए अली के नाम? ये है इनकी राफसियत। और सुने, बाकी जो इनडायरेक्ट निकालते हैं ना जी के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे सिर्फ हजरत अबू बकर नहीं खड़े हुए हैं, सैयदना अली ने भी नमाजें पढ़ाई हैं। अगर बुखारी में हदीस है ना कि अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो, मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, मिशकात में भी हदीस मौजूद है। अच्छा देखें जरा भाई मेरे, मिर्जा जी क्या कह रहे हैं? मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है। मिर्जा जी इसी अपनी वीडियो के अंदर कह चुके हैं बतौर खास अवामुन्नास के लिए शाह जी, कि जिन्हें अहादीस के सही या दईफ होने की पहचान नहीं होती जब तक कि उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। मिर्जा जी सही होने की रहनुमाई कर रहे हैं ना, मिर्जा जी सही होने की, क्योंकि वो कहते हैं कि इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व दईफ क्या है। अवाम तो इतनी लल्लू पंजू है, वाकई यही लल्लू पंजू अवाम तो है जो मिर्जा को सुनकर तहकीक कर नहीं रही है। वरना देखो जरा बात को, मिर्जा ने क्या कहा है? मुस्नद अहमद की रिवायत क्या है? सही सनद के साथ। और उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा, आगे देखें। मिर्जा जी ने इसी वीडियो में अपनी ये बात कही है, इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींच तान के ज़ईफ साबित किया है। और मैंने शेख जुबैर साहब से फोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमजोर है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? मिर्जा जी इल्मी हदीस की तस्हीह व तज़ीफ के मसले में इल्मी बहसों को मिर्जा जी समझ लेते हैं ना। ये मुस्नद अहमद में जो सही सनद के साथ मिर्जा जी जो बात कर रहे थे कि सही सनद के साथ, ये मैं मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 406 ये मिर्जा जी की बयान कर रहा था। सही सनद को जरा सुन लीजिएगा। हद्दसना मोहम्मद बिन जाफर हद्दसना औफ अन मैमून अबी अब्दुल्ला अन ज़ैद बिन अरकम, ये इसकी सनद है। रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, फिर अम्मा बात कहकर फरमाया, मैंने अली का दरवाजा छोड़कर बाकी तमाम दरवाजे बंद करने का जो हुक्म दिया उस पर तुम में से बात लोगों को एतराज है। अल्लाह की कसम मैं अपने तौर पर किसी चीज को खोल बंद नहीं करता, बल्कि मुझे तो हुक्म दिया गया है और मैं उसी की पैरवी करता हूं। भाई 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 मेरे, सुन रहे हैं बात को? सनद क्या है? हद्दसना मोहम्मद बिन जाफर हद्दसना औफ अन मैमून अबी अब्दुल्ला अन ज़ैद बिन अरकम। अब ये मैमून अबी अब्दुल्ला जो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से इसको रिवायत कर रहा है, ये जरा देखिएगा, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है। ये तहज़ीब तहज़ीब की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 450 मैमून अबू अब्दुल्ला अल बसरी अल किंदी। सुनो बात को तवज्जो से। मैमून अबू अब्दुल्ला के बारे में इमाम
बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं साल तो याहिया बिन सईद अन मैमून अबी अब्दुल्लाह अल्लज़ी रवा अनहु औफ। सनद किससे है? औफ अल एराबी बयान कर रहा है मैमून अबी अब्दुल्लाह से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया याहिया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह से। याहिया बिन सईद कौन? याहिया बिन सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस के पहाड़। कहते हैं कि उनसे सवाल हुआ मैमून अबू अब्दुल्ला जो रिवायत करता है औफ से, यानी औफ जिससे मैमून अबू अब्दुल्ला जिससे औफ रिवायत करता है, फहमद वजहू, आपने अपने चेहरे को झुका लिया, आपने अपने चेहरे को झुका लिया। और सुनो जरा बात को, वकाला ऐज़न, और कहते हैं काना याहिया ला युहद्दिसु अन्हु, और याहिया इससे कोई हदीस नहीं लेते थे, इससे कोई हदीस नहीं लेते थे। काल अल असरम अन अहमद, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम असरम उनसे बात करते हैं अहदीसुहु मुनाकिर, इसकी बयान करता रिवायत मुनकर है, इसकी बयान करता रिवायत मुनकर। और भाई समझो मिर्जा जी कह रहे हैं अपने मुंह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बुखारी में हदीस है ना कि अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो, बुखारी में हदीस है अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो, मुस्नद अहमद में हदीस है कि अली के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो, तो असल में दरवाजे बंद किसके करने हैं? मिर्जा जी आप कहते हो क्या ये मौलवी कूड़ मारते हैं? जितनी बड़ी तू कूड़ मारता है उतनी बड़ी कूड़ कोई भी नहीं मारता। क्या गोरख धंधा है? कोई सवाल करने वाला पूछे तो सही आदमी सवाल। मिर्जा जी का मुकल्लिदीन से हमारा 10वां सवाल है, आप हल करके दे दो इस मसले का। मैं अगर दोनों हदीस सही है बिल फर्ज, तो असल में दरवाजे बंद किसके करने हैं? अबू बकर के, अली के? किसका बंद करना है दरवाजा? आप मसला हल करके हमें दे दो, दोनों हदीसों को सामने रख के। खुद कह रहा है अपने मुंह से बुखारी की रिवायत क्या है, सही हदीस क्या है, सही बुखारी की हदीस, सही हदीस वो क्या है कि अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अहदीसुहु मुनाकिर, और अहले इल्म हमारे जैसे तालिब इल्म दोनों हजरात इस बात को जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मुनकर हदीस का इतलाक उस पर करते थे कि ज़ईफ रावी सिकात के मुखालिफ मजमून बयान करें तो इमाम अहमद बिन हंबल उसकी रिवायत को मुनकर कहते हैं। देखो ना कि बाकायदा मैमून अबी अब्दुल्ला बुखारी के रुवात के खिलाफ ये रिवायत करता है, जिन्होंने बुखारी के रिवायत ने क्या रिवायत किया कि अबू बकर के अलावा सारे दरवाजे बंद करो, और मैमून अबी अब्दुल्ला ये रिवायत करता है कि अली के अलावा। और मैमून अबी अब्दुल्ला का हम मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को 11वां सवाल दे रहे हैं, इस रिवायत में मैमून अबी अब्दुल्ला का कोई मुताबिक तो ढूंढ के ला कर दो कि यही मजमून मैमून अबी अब्दुल्ला के अलावा कोई और रिवायत करता हो। और सुनो, इमाम इसहाक बिन मंसूर याहिया बिन मईन रहमतुल्लाह से बात करते हैं ला शै, ये कोई चीज नहीं था। इमाम अबू दाऊद इस पे जरा करते हैं। इब्न अब्बान किताब सिकात, सिका रावियों के ऊपर जो किताब लिखी है उसमें यानी बयान करने के बाद भी कहते हैं वकाला काना याहिया अल कत्तान सईद राय फी है कि इमाम याहिया बिन सईद अल कत्तान इसके बारे में बुरी राय रखते। और सुनो जरा बात को, मैमून अबी अब्दुल्ला से रिवायत करने वाला औफ, ये औफ कौन है? ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 367-368 पे इसका तर्जुमा है। औफुल आराबी अबू सहल अल बसरी। सुनो जरा बात को, उमर बिन अली अल मुकद्दमी कहते हैं रायत इब्न अल मुबारक यकूलु ले जाफर बिन सुलेमान रायत इब्न औन व अय्यूब व यूनुस फकैफ लम तुजालिसुहुम व जालिस तो औफन। भाई मेरे वो कहता है मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को देखा, कह रहे थे जाफर बिन सुलेमान अज़्ज़ुबई से, क्या मैंने इब्न औन, अय्यूब और यूनुस को देखा है, वो यानी लम तुजालिसुहुम, भाई इनके साथ नहीं बैठते, वजालिस तो औफन, वो औफ के साथ बैठते। वल्लाहु मा रदिया औफ बिदातिन हत्ता कानत फीह बिदातान है, औफ किसी एक बिदत पे खुश नहीं था, यहां तक कि उसमें 2 बिदतें थी। औफ में 2 बिदत, काना कदरियन व काना शियन, वो कदरी था और शिया था, वो कदरी था और शिया था। और मोहम्मद अली इंजीनियर राफजी है कि शियों राफजियों की रिवायतें इसको सुनाने को मिलती हैं, जिसको कहता है सही सनद से रिवायत है। सुनो, वकाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी रायत तो दाऊद बिन अबी हिंद यज़रुबा औफुल अराबी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं दाऊद बिन अबी हिंद को हमने देखा, औफुल अराबी को मारा उन्होंने। वह यकूल बैलका या कदरी, हाय खराबी हो तेरी या कदरी। वकाला बुंदार
اور امام بندار کہتے ہیں وہ یکرا لہم حدیث اوف، ان کے سامنے اوف کی بیان کرتا روایت پڑھی جا رہی تھی، وہ کہنے لگے واللہ لقد کان اوف قدرین رافضین شیطانا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اوف قدری ہے، رافضی ہے، شیطان ہے۔ اب مرزا جی کس کی روایت سنا رہے ہیں؟ رافضیوں کی روایتیں سنا رہے ہیں۔ اندازہ تو کرو، میمون ابو عبداللہ منکر روایتیں بیان کرنے والا، اوف والا راوی رافضی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اوف والا راوی کی روایت ہوتی ہم قبول کر لیتے، میمون ابو عبداللہ منکر مضمون بیان کرنے والا اور بخاری میں صحیح سند سے روایت موجود، اس کے بعد تجھے یہ سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ روایت تو سندن ضعیف ہے۔ للو پنجو آبا جنہیں صحیح یا ضعیف کا پتہ۔ اور مرزا جی کا فیورٹ جملہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں مرزا جی نے کہا آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، یہی تو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے مرزا جی کو، کہ مرزا جی ان کمزور مسلمانوں میں ڈاؤٹ پیدا کر کے بینیفٹ لیتے ہیں۔ اور سنو ذرا بات کو، مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ صحیح سند کے آپ کو کہتے ہیں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث آپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، ٹھیک ہے جی۔ آج ذرا سمجھیے گا، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہا ہے، وہ حضرت معاویہ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا اللہ اس کو ہدایت کرنے والا بنا، تو اس کے لیے مرزا جی نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا ہے ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ میں مرزا جی کے مقلدین کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، مرزا جی بخاری کی روایت کے ساتھ نہیں، مرزا جی مسند احمد والی روایت کے ساتھ ہیں، لیکن بات یہ ہے مرزا جی کے ساتھ محدثین نہیں ہیں۔ مسند احمد والی روایت کو متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی صحیح نہیں کہا ہے۔ یہ آپ سمجھیں ذرا بات کو، مرزا جی کا یہ مخصوص ایک اسٹائل ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا جی جو نا جانبدار ہیں، تو یہ والا پروٹوکول والا معاملہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی۔ یہ بس آخری مسئلہ، ہم اس کے بعد بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سنیں، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پروٹوکول والا معاملہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، بس حضرت علی کے پیچھے۔ یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی۔ تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں، البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا۔ یہ سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی میں یہ کتاب الصلاۃ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب پہلے قائم کیا، باب ما جاء اذا صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا، کہ اس بات کے بیان میں کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ پھر اس کے تحت دوسرا، اس کی امام ترمذی کی عادت ہے، ایک باب قائم کرتے ہیں پھر اس کی فصل میں دوسرا باب قائم کرتے ہیں، امام ترمذی نے دوسرا باب قائم کیا باب منہ، یعنی پہلے باب سے متعلق ہے، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 363۔ اور مرزا جی کے فیورٹ البانی سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے اس کو صحیح کہہ رکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہہ رکھا ہے۔ ان انس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ خلف ابی بکر، اور نیپال سے بھی کوئی زندہ لوٹ کر آنے کے چانسز نہیں رکھتا، اب چاہے وہاں کوئی بھی اٹھانے پہنچ جائے۔ بھائی میرے سنو، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں بیٹھ کر ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ او بھائی میرے سن رہے ہو بات؟ یہ نہیں، مرزا ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا؟ کتنے تم تراک سے کہا نا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ
خصوصیت صرف ایک شخص کی اس امت میں عبد الرحمن بن عوف کی. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے یہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بس آدمی کو مرزا جیسا سمن بکمن اومیون فہم لا یاکلون نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.